I'm viewing it more as a genetic component, like obviously, like genetics wise. जेनेटिक्स आई थिंक बहुत छोटा गेम So है. I place a lot. So I place a high value on genetics. Maybe like one example I'll share with you is like, let's say the ability to solve math problems or like think logically and like logically and in be well in those areas, right? I feel like there is a strong genetic component to when you can reason out in that way as opposed to a kid or somebody else who's not able to do that. So I feel in those segments that there is a genetic component there, and that's obviously luck, right? In the sense that I never asked, I never chose, or I didn't tell my mom to, when I was born, give me the the quotient where I can reason out math problems very well as opposed to I can dance very well, and even like things like dance or things like writing poetry. I feel like there should be like some genetic component where you're able to even think about those things or put certain words in order where it makes a lot of sense. आई डोंट थिंक सो. मतलब इफ दैट वाज ट्रू तो सचिन तेंदुलकर के पापा को बहुत बड़ा क्रिकेटर होना चाहिए था और तेंदुलकर के बेटे को भी बहुत अच्छा क्रिकेटर होना चाहिए था, बट दोनों ही साइड से ऐसा नहीं हुआ. I mean, but if you mix the genes of Sachin's mom and dad, I mean, there you might get a new recipe where it doesn't necessarily have to be that, So I don't think the genetic component इतना major. A lot of okay. It is there definitely. Genetics help you, but ज़्यादातर इस चीज़ों पे हेल्प करता है कि आपका बॉडी को डायबिटीज़ होगा कि नहीं, या आपके बाल झड़ेंगे कि नहीं, या पिंपल होंगे कि नहीं. मोर देन दैट, क्योंकि आप देखो ना, एक ही घर में दो बच्चे होते हैं. आपने दीवार देखी है, उसमें एक ही घर में दो बच्चे होते हैं. एक चोर निकलता है जो बोलता है कि मेरे पास आज घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है. दूसरा बोलता है मेरे पास माँ है. मॉडर्न फैमिली में देखो, लूक और एलेक्स एक ही हैं, एक ही घर के हैं. हेली भी एक ही घर की है, बट अलग अलग होते हैं. और आई नो आई एम गिविंग दीज एग्जांपल्स, बट ऐसे ही होता है लाइफ में. छोटा भाई छोटी बहन बहुत डिफरेंट हो जाता है बड़े भाई बड़ी बहन से. बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है. तो एक फैमिली के अंदर सेम जेनेटिक्स में भी तो कितना डिफरेंस होता है. स्टार्क डिफरेंस होता है ना, हमें तो पता है. मतलब तो आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट है. जेनेटिक्स को भी हम जानबूझ के इसलिए ब्लेम करना चाहते हैं क्योंकि वो इजी वे आउट है ना, कि अब हमें मिला ही नहीं जेनेटिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं. That's also fair. I mean, sometimes even I've rationalized a lot of my where I've not done things well, like this math thing I was talking about. I've rationalized myself, maybe genetically I'm just not gifted. So it could be that it might be an easy way out, or it's a nice rationalization for me to sleep well at night. So that also could be the issue. That works for you. It works for you. Yeah. But you seem to let's go a little into not the genetics part but the parenting part. If I may get a little personal in the sense that one aspect that I took from what you've said is obviously how the elder behaves with the child plays an important role in the child's future. Sure. In the sense that if the elder is taking an interest in the child's studies or in the interest of the child itself, probability of success increases dramatically. In that sense, like, I'm very curious to know your thoughts on corporal punishment, like in the sense like maybe hitting students or hitting or if we can come one layer down in the sense that if I'm a parent or if you're a parent, for their success, do you think that we should maybe indulge in like maybe spanking them now and then to for them to understand concept better? Because if I may set this up even more, it proved really the way you were telling your story, at least it felt like you really loved the fact that your mom was hitting. नहीं, I did not. मारना was not important. मारो, डांटो, पनिशमेंट दो, ग्राउंड कर दो, कुछ भी करो, it doesn't matter. What matters is कि आपके पास एक फीडबैक लूप होना चाहिए. मारना is just a strong piece. So you even without the... हाँ, मतलब नहीं भी मारती तो चल जाता काम. मतलब मेरी बहन को तो एक थप्पड़ भी नहीं पड़ा है पूरी जिंदगी. But she is gold medalist from her college. स्कूल में थ्रू आउट टॉपर रही है, ठीक है. उसको तो किसी ने कोई मारा ही नहीं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट वेट ऑन इसकी फीडबैक लूप्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. फीडबैक ये होना चाहिए कि ये इस घर में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, आपको पढ़ना होता है. देखो भैया पढ़ रहा है, आप भी पढ़ो, ठीक है. कोई प्रॉब्लम है तो भैया के पास जाके पूछ लो, मुझसे बैठ के पूछ लो. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मतलब आई डोंट थिंक कि मारना इंपॉर्टेंट. मारो तो नहीं ही चाहिए, बट मार भी दिया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं. क्या है, बच्चा ग्रो, मतलब बच्चा का क्या है, कभी यहाँ सर फोड़ता रहता है, कभी वहाँ हाथ टूटता रहता है. एक थप्पड़ ही लग गया तो उसमें क्या है. तो आई एम लाइक कि मीडियम रहो यार. आजकल के पेरेंट्स तो मतलब एक थप्पड़ मारने में भी डरते हैं बच्चे को, और दूसरी तरफ
हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स में तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो मीडियम रहो, मारना है अगर आपको लगे कभी गुस्सा आ गया कभी इतना, ठीक है, अपना ही बच्चा है, ले लो एक थप्पड़, क्या फ़र्क पड़ता है। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू नीड टू बी इन्वेस्टेड एंड सेट द ग्राउंड रूल्स कि देखो तुम्हारे सक्सेस में मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ। जैसे मेरी मम्मी, मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल में दूसरे शिफ्ट में वो टीचर थी, तो मेरी मम्मी मेरे बार इतना हाई रखती थी हर समय, कहीं जाकर मेरा नाम लिखवा देती थी। कहीं पे स्पीच देना है तो बाबू देगा, घर में बाबू बोलते बाबू देगा, तो आकर बोलती थी तुम्हारा नाम लिखवा दिया मैंने, ठीक है। ये करना है, छऊ नृत्य हो रहा है वहाँ का, एक लोकल नृत्य डांसिंग होता है झारखंड में, तो उसमें मैं सरस्वती बना था, ठीक है, क्यों कि नाम लिखवा दिया। योगा क्लासेस करवाने हैं, बाबू करवा देगा। पेड़ बनना है, बाबू बन जाएगा। कोई भी चीज होती थी, साइंस कांग्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बोली लीडर तुम बनोगे, कैप्टन तुमको बनना चाहिए। उतना पुश करती थी कि भाई करो, क्यों नहीं। और हमेशा बोलती थी कि देखो क्लास में टॉप वॉप आने का जरूरत नहीं है, वो 90% जो बच्चा लाता है और 95% जो बच्चा लाता है उसमें कोई अंतर नहीं होता है मेरी नज़र में। तुम 90% लाओ, 85% लाओ, पढ़ो मन लगा के, लेकिन ये सब चीज़ें भी करो। ये तुम्हारा 100% मतलब क्या कहते हैं उसको, पर्सनालिटी तुम्हारी पूरी डेवलप होनी चाहिए। उतनी इन्वेस्टेड थी, खुद जा के बुक फेयर से बुक्स लेकर आती थी, अपने लाइब्रेरी, हर टीचर को बोलती थी कि लाइब्रेरी में बैठता है, तो मैं अपने स्कूल खत्म करके और लाइब्रेरी जाके स्कूल के बैठ जाता था, फिर मम्मी के साथ घर आता था। तो मेरे 4-5 घंटे मुझे और मिलते थे लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ने के लिए। तो शी यूज्ड टू टेक दैट पेन। घर में मेरे कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर टीचर से बात कर ली थी कि भाई इसको बैठ जाने दीजिए, और मेरे को बहुत इंटरेस्ट कंप्यूटर में बचपन से, तो मैं बैठ रहता था कभी लाइब्रेरी में कभी कंप्यूटर्स में। बट द थिंग इज कि शी टुक अ लॉट ऑफ पेन, छोटी छोटी चीज़ों का इतना पेन लगी थी कि शर्ट गंदा पहन के नहीं जाना है। तो मैं शुरू से मुझे आता था कि गंदा शर्ट या बिना आयरन का शर्ट नहीं पहनना है। नेल्स अभी इतने बड़े हो गए तो भी मेरे नेल्स कभी नहीं बड़े होते। नेल्स बड़े नहीं करने हैं आपको, क्योंकि आपको रोज चेक होता है, तो क्या बोलेंगे लोग कि कनक में इसका बेटा ही सही से नहीं करता। तो उतना हाई स्टैंडर्ड्स अगर आप सेट करोगे अपने बच्चे के लिए, तो दंगल हमें क्या सिखाता है, द मूवी दंगल से, इसकी भाई कल से हो गया, आज जितना चाट खाना है खा लो, कल से बेटा अब चाट नहीं मिलेगा, अब पहलवानों वाली जिंदगी जीनी है। लड़का हो या लड़की, गोल्ड तो कोई भी ला सकता है। तो हम दंगल सेलिब्रेट करते हैं ना, दंगल मूवी, हैव यू वॉच्ड दंगल मूवी? दंगल मूवी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वो ट्रेन कर रहा है ना एथलेटिक को। अगर उसी बच्चे को चॉइस दे जाए तो वो तो खाएगा ही, वो तो चाट खाएगा ही, वो तो उसको तो खाना ही है। तो आपको बोलना है ना कि यार मैं पेरेंट हूं यार, मैं आई विल होल्ड यू टू अ हायर स्टैंडर्ड। सो मारना डांटना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो कहानी का एक छोटा सा पार्ट है। क्यों? और वो इसलिए स्पाइक करता है मेमोरी में क्योंकि वो बहुत बुरा लगा मार खा के। बट ये जो इंस्टेंसेस है, इतने सारे 50 इंस्टेंस जहां पे मुझे खड़ा कर दिया जाता था स्टेज पे, तबला बजाना सिखाया, फिर स्टेज पे खड़ा कर दिया कि मॉर्निंग असेंबली में तबला बजाओ मुझे से, तो मैं तित्तिन्ना धिन्ना धिन्ना तित्तिन्ना धिन्ना धिन्ना करता था आराम से स्टेज पे जाके रोज। तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया कि यार ठीक है, लोगों के सामने खड़ा होकर कुछ भी आपको आता है तो कुछ करने में इतना दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, यू कैन डू इट। So it's I think it's pretty clear that your mom has had a huge influence on you. Do you think she's happy with you today? ठीक है, मतलब मेरी मम्मी तो बहुत ही खुश रहती है मेरे से। Is that the, like, I get the sense that, I mean, she was the one pushing you into like multiple avenues and multiple even asking you to take multiple activities as well. Are there other areas where, or is it fair to say that she's the one who's had the most influence in your life? Or? Definitely, yaar. I mean, I remember a few years back when I thought I made it in life, क्या अच्छे खासे पैसे आ गए हैं। So I went to a place, मतलब एक मेरे सीनियर थे, उनके घर मम्मी को बुलाया था, जब मम्मी आई थी यहाँ पर बैंगलोर, तो उन्होंने बुलाया था, तो हम लोग गए थे उनके घर। तो उनके घर में मतलब आप बेसमेंट पे जाओ, फिर कार्ड लगाकर लिफ्ट खुलती है, फिर लिफ्ट में जाओ, घर ऊपर 3 BHK बड़ा शानदार घर, बहुत अच्छा फर्निशिंग, और हम लोग बहुत छोटे से जगह से हैं, मतलब हमारा जितना उनका हॉल एरिया है उतना उतने उससे कम में हमारा पूरा घर था 1 BHK। तो मैंने मम्मी को बोला कि देखो मम्मी, 5 साल में ना मैं यहाँ होऊंगा, ऐसा होगा मेरा घर, ऐसी मेरी गाड़ी, और ऐसे ही मतलब बिल्डिंग में एंट्री के लिए मुझे भी ये करना होगा, लाइक कार्ड लगाओगे तुम लोग। तो मेरी मम्मी बोली कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो उस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, मतलब वो मंत्री फ्लोरा अपार्टमेंट है, सो इतने लोग रहते हैं, तो तू भी कर लेगा तो कौन सी बड़ी बात होगी उसमें। हाउ इज दैट द विन? अगर मेरा बच्चा है तो कुछ कर ऐसा जो देश के लिए हो, कुछ बड़ा करो,
स्टैंड आउट करो. यहाँ तो पहुंच ही जाना है, अब इतनी मेहनत कर ली तो पहुंच ही जाना है, यहाँ से स्टैंड आउट करो. तो दैट हैज बीन द स्टोरी कि आई डोंट थिंक आई वुड हैव स्टार्टेड इन वैक्ट या कुछ भी ये सब अगर फिर से मम्मी ने ऐसे नहीं बोला था कि यार अभी भी सेटिस्फाइड तो नहीं है और कुछ करके दिखाओ, ये तो सब कर लेंगे. तो बहुत बहुत ज़्यादा पुश है लाइफ में. So, on the one hand, there's your mom. You, on the other hand, I think you're in your mid-30s, if I'm not wrong. Early 30s or... Early 30s, Early yeah. 30s and approaching Thank you. mid-30s, obviously. And approaching Tasty, but 40s it's in some okay. time. So, I don't know. My guess would be you'll also someday be a parent. Have you learnt any... Do you have an idea of, like, either from the way you have been parented, some of the things you will probably never do, or have you thought about like what kind of parent you might want to be? Especially, I think I want to connect this to, in the sense that there are a lot of students who might be. I've seen some of your posts where I think a lot of students text you for advice on, you know, whether I should do this degree, that degree. It's not parenting, but I mean, in some ways, it's like a substitute as well, where, you know, people are looking up to somebody for advice in that sense. So there is that dynamic going on, you know, guidance for a dynamic per se. So in that sense, have you thought about, I don't know, or is that too soon? Or टू सून. पेरेंटिंग का तो मेरा सिंपल है, जब भी होगा कि बच्चे को वही खूब सारी चीज़ें करो, मूवीज़ बनाओ, गेम्स खेलो, बी आउट एंड आउट, और 80% 90% इज़ गुड इनफ. उतना तो आप अगर मेहनत ध्यान दे दो क्लास में और होमवर्क्स कर लो तो आ ही जाते हैं. तो सिंपल है, बस यही फॉलो करना है. और जो बच्चों के साथ इंटरनेट पे है, दैट इज़ मोर ऑफ एन एल्डर ब्रदर थिंग देन फादर फिगर थिंग. सो वहाँ पे मेरा रहता है कि यार लाइफ फिगर आउट हो जाती है, इतना स्ट्रेस मत लो, गिव इट एन ऑनेस्ट ट्राई. मैक्सिमम लोगों की लाइफ फिगर आउट हो जाती है. लोग ऑनेस्टली मेहनत करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है दुनिया में काम करने के लिए. So again, I want to push that argument a little further. So when I mentioned about people texting you and all that, there is a specific way I think people text you, and I think you're also called as Bhaiya as well. But so I feel like there's been some backlash, not with you per se, but I think in terms of like this Bhaiya Didi culture, that has, I think, recent. At least I've read a few tweets about this pretty recently. Do you think that there might be a toxic element to, like, you know, this Bhaiya Didi culture, or people might be taking things too far, or maybe depending on another person too far, where because they may not have any idea, and they see someone, you or anybody else on the internet, and you know, it's just like shut your eyes and then just walk the path. Do you think, first of all, does that happen? Is that a fair characterization, or am I missing something? पता नहीं, I haven't thought about this much. I feel कि there's enough work to do अभी एजुकेशन में, कि ये ट्विटर पर कोई खाली बैठकर क्या ट्वीट कर रहा है, क्या बोल रहा है, उनको इतना थॉट दिया जाए कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है. Have I helped enough people to figure out their career? Yes. Am I making something which can help a lot more people to figure out their career? Yes. काफ़ी है. थिंक इतना गाइडिंग लाइट एनफ होता है. हर नुआंस में हर किसी के ओपिनियन पर घुसते लगोगे तो वो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ओपिनियंस आर चीप. वर्क इज़ हार्ड ना. बैठो, रोज़ वीडियो बनाओ, बच्चों को प्रॉब्लम समझो, उनसे बात करो, उनके डीएम्स रिप्लाई करो, उनके लिए क्या सही है सोचो और बताओ उनको कि नहीं, अगर तुम्हारा ये हो गया है तो तुम ये कर सकते हो. या बोलो कि यार मुझे नहीं पता एसएपी के बारे में, रुको मुझे किसी से बात करने दो. फिर किसी को फ़ोन लगाओ, भैया एसएपी कर रहे हो तुम, क्या होता है एसएपी, मुझे भी समझा दो. फिर समझो, फिर वापस जाओ उसको चैट पे फिर से बताओ. ये सुनने में बहुत आसान लगता होगा, बट बहुत सारा टाइम लगता है. नाउ आई एम डूइंग दिस मे बी फुल टाइम एजुकेशन में. पहले तो मैं जॉब के साथ कर रहा था ये सब कुछ. इतने डीएम्स रिप्लाई करता था मैं कि मेरे आंखों में दर्द हो जाता था, पानी आने लगते थे आंख से, क्योंकि इतने देर आप फ़ोन कैसे देखते रहोगे पूरे टाइम. उनके साथ बैठो, पढ़ाओ, लिखाओ. तो आई फील कि ओपिनियन करना तो बहुत आसान है, क्योंकि भाई मैं तो वीकेंड पे कहीं से घूम के आया और मैंने एक ट्वीट मार दिया कि ये तो टॉक्सिक है, ये तो नहीं जलता. नुआंसेस आर हार्ड. हाँ, कुछ टॉक्सिक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट हर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है. कार है, चलेगा तो धुआं तो निकलेगा ही, बट कार का काम
तो ए से बी जाना है ना, धुएं पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो? धीरे धीरे कार ईवी की तरफ चला जाएगा, चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। बट वो क्या है ना, आर्म चेयर क्रिटिसिज्म कहते हैं उसको, कोई फ़ायदा नहीं है वो सब सुन के ज़्यादा। So here I have another hypothesis, and you can tell me whether I'm going wrong or somewhere. So in terms of like, one is helping people, but also in terms of like the courses that you might that you might engage in, I feel like in general it's a very thankless job, in the sense that I feel no matter how many the way I'm thinking about this is like, you can never make people happy in that sense, no matter what course you might do, whether it's programming, whether it's English literature, I feel people who will learn, I feel generally people who learn, they'll be silent and they'll move on with their life. But people who may not either get the outcomes that they desired, or they had some other idea in mind, and they expected something but something else happened, and now all they do is crib. So in a sense that even if your motivations, any person's motivations are very pure, I feel the sector is such that no matter what you do, you'll always fall short. Is that fair? Or नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब obviously 5-10% people would be unhappy and things would be there, but वही है ना, हमारे माइंड की ट्रेनिंग ऐसी है कि you want to concentrate on the two people who are talking shit about you, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी है माइंड की कि हम उस जगह से आए हैं जहाँ if tribe doesn't accept you, you will die alone. That's 50,000, 100,000 years back, right? अब tribe has become so big, suddenly the whole Twitter is your tribe, and tribe used to be 30-40 people. तो psychological safety नहीं लगती आपको when someone talks negative or someone talks shit about you, और आप उस पर ही concentrate करना चाहते हो। Every YouTube video I put, 1-2 कमेंट कोई आ ही जाता है कि अरे भैया कुछ पढ़ा भी दो, अभी आपने कब से ये बताया, कुछ some negative comment आता है। Easy है याद रखना, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग वैसी है। बट आई डोंट थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको जॉब मिला, दे हैव थैंक्ड, दे फील ग्रैटिट्यूड, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। तो क्यों लाइक मुझे चाहिए क्योंकि हर कोई थैंक यू बोले, मुझे चाहिए क्योंकि हर कोई खुश रहे, आइसक्रीम थोड़ी हो, तो आइसक्रीम मेक्स एवरीवन हैप्पी ना, नॉट दैट पर्सन दैट थिंग। तो इतना टेंशन क्यों लेना है? नहीं चलता यार अब दिमाग में ये सब चीज़ें, इतना काम रहता है ना सुबह से शाम। सुबह आओ ऑफिस में, काम करते करते कब रात हो जाती है, घर जाओ, फिर सोचते कब सो जाते हो, कि इतनी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता एक टाइम के बाद। So if I can go a little deeper on that, like why do you think you like to help people? In the sense, there are so many students that reach out to you, and earlier you also mentioned that you were responding to messages till your eyes. हाँ, मैंने रेड हो गया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था इनफैक्ट। Like, so let me contrast this with my own personality, right? Like, I don't think I help a lot of people, but maybe that's and maybe the outcomes of that are very different, and but broadly, like, I don't think I'm a very helpful person in that sense, and also even if people reach out to me, I may not really be very enthused about helping people. It's your shit, take care of it, that attitude, so if we contrast that, like, what do you think like, what is that desire or that need that you feel that you have to make that effort? नहीं पता यार, ऐसा कुछ तो है नहीं, कुछ बहुत ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब क्यों नहीं करें? आई वुड से कि अगर आप, पहली चीज़ होती है सेल्फ प्रिजर्वेशन लाइफ में, कि आपको नहीं मरना है, आपको इतना खाना पीना पैसे रुपए चाहिए कि आप आराम से जी सको। तो मैंने तो कर लिया लाइफ में वो चीज़, अच्छा खासा बनाया, हमेशा जब भी पैसे बनाने शुरू किए काफ़ी बनाए, और मुझे पता था कि इससे ऊपर कैसे जाना है, कितना करना है, क्या करना है, और फिर टाइम रहता था इतना सारा। तो अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें, कर लेना चाहिए। कर लोगे तो हो सकता है कि आपकी कंट्री बेटर हो जाए, कुछ बच्चे बेटर हो जाए। अगर आज 1000 बच्चों की भी जॉब लगी है तो 1000 बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में। नहीं करने को तो नहीं करते, बट क्या ऑप्शन था? मतलब व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, आई थिंक द अदर वे। मुझे ट्रैवल अच्छा नहीं लगता, नेटफ्लिक्स में नहीं देखता, तो ऑप्शन ही क्या था करने को? मतलब मुझे तो ये समझ में आता कि लोग टाइम का करते क्या, इतना सारा टाइम है सबके पास, मतलब क्या करोगे यार, कितना ट्रैवल करोगे, वही पेड़ पहाड़ झरना कितना देखोगे हर दिन जाके। So there we think alike. Even I hate traveling. Not a big fan. दारू पी के पड़े रहने का कोई फायदा नहीं लगता मुझे, अपना बॉडी खराब होता है।
तो जब टाइम मतलब तुमने अपने लिए वो जितने पैसे बनाने बना लिए, अब इससे ज़्यादा बनाओगे तो क्या करोगे? रोलेक्स लगाओगे, कुछ बड़ी कार खरीदोगे, कुछ बड़ा घर खरीदोगे, तो वो भी एंडलेस है, उसका भी कोई एंड नहीं, वो भी एक तरह से एक इंटॉक्सिकेशन ही है. मनी ऑल्सो आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इंटॉक्सिकेटिंग. और बैंक बैलेंस, और बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, और लैविश ट्रैवल, यही करते हैं लोग. तो मुझे उसमें भी लगता है कि वो भी मतलब वो भी उसका भी कोई पॉइंट नहीं है. तो अगर पॉइंटलेस चीज़ों में नहीं आपको बैठना है, नहीं करना है, तो फिर क्या करोगे? आपके पास टाइम है तो यू फील कि यार कुछ हेल्प ही कर देते हैं लोगों का, ये ज़्यादा फुलफिलिंग है. बच्चे अच्छा करते हैं, वापस आकर सालों सालों बाद मैसेज करते हैं कि भैया आपका वीडियो देखकर शुरू किया था, आज मेरी जॉब लग गई. बहुत अच्छी बात है, गुड. और क्या चाहिए? मतलब मुझे तो लगता है कि हमेशा मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि तो ऑप्शन क्या है, करूँ क्या इसके अलावा? No, I think there are a lot of options, but I mean, in a sense, कुछ नहीं है यार. मैं एक किताब पढ़ी थी 4 Hour Work Week बहुत पहले 2019 में, व्हेन आई वाज लाइक थोड़ा बोर हो गया था. मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी आई गॉट प्रमोटेड, कुछ काम नहीं रहता था करने को ज़्यादा. तो किताब पढ़ी थी तो उसमें था कि NR का कॉन्सेप्ट है उसमें, न्यू रिच. वो कहता है कि आप अपना टाइम, आप ऐसा काम करो कि आपको टाइम बहुत सारा बचे, पैसे बहुत सारे रहें, तो आप लाइफ को जी सको. तो उसमें फर्स्ट ही में लिखा है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, like considerable money, not a lot of money, what would you like to do with your life? मेरे पास तो आंसर ही नहीं था. तो 2019 में भी मेरे पास आंसर नहीं था, 2023 में भी मेरे पास आंसर नहीं है. तो जब मेरे पास आंसर है ही नहीं, बहुत निहिलिस्ट साउंड करता है ये चीज़, बट सच्चाई यही है. आई डोंट फील अ लॉट ऑफ फन गोइंग टू प्लेसेस, या बहुत अच्छा खाना खाकर, या बहुत सारे कपड़े खरीद कर. अच्छा लगता है सब कुछ मॉडरेशन में, अच्छा लगता है. अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, गाड़ी भी ठीक है, घर भी ठीक है, मॉडरेशन में अच्छा लगता है. बट उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाता है आपके पास? और ये कितना इंटरेस्टिंग है. इतना बड़ा चैलेंज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इतने लाखों करोड़ों बच्चे हैं. आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो जो कितने सारे लोगों की जिंदगी, जनरेशन्स को चेंज कर सकता है. इससे इंटरेस्टिंग तो मुझे कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती मुझे इससे इंटरेस्टिंग. तो क्यों ना करे आदमी ये? So I mean, I understand, or I empathize where you're coming from, but I have also met a lot of people for whom once there is no concept of enough money. Like, you know, it's like I have 1 CR today. Obviously, I want 2 CR next year, or obviously, I want 10 CR next year, and that pursuit kind of really, you know. Now we can go on debating. Good for them. We can go on debating good for whether them. it's you know, whether it's the right thing to do, or whether it's the, you know, whether it's the most satisfactory thing to do. But that is what drives them, and that you know, the bigger house in Level Road, and you know, the next flat which is like 4 BHK and 5 BHK. That विला खरीदेंगे, प्राइवेट प्लेन होना चाहिए. The next Mercedes, whatever SN Y class or whatever. मुझे तो पता भी नहीं रहता इनफैक्ट कि ये सब है क्या. So that also kind of drives a lot of people as well. And, Good for them. Yeah. ऐसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म इज डिजाइंड अराउंड इट. तो वो है, आई थिंक रेड पिल ब्लू पिल का गेम है. जो भी पिल लेकर खेलो आप. मेरे साथ ये हुआ कि यार आई हैव लाइक 100 months ऑफ पर्सनल रनवे. तो मैंने बोला इतना पैसा है, अब क्या करूँ? तो अगर इतना पैसा है आपके पास, तो फिर ऐसे गेम्स खेलो जो आपको लगता है कि जिसके बहुत ज़्यादा असिमेट्रिक रिटर्न्स हो सकते हैं. आई डोंट मीन बाय मनी, बाय चेंजिंग हाउ थिंग्स वर्क. मतलब आप तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज करो, लोगों की लाइफ चैलेंज करो, इंडिया को सुपर पावर बनाओ, ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करो जिसमें मज़ा आता है. तो मुझे उसमें मज़ा आता है. तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आई एम लाइक बहुत मेरा ना बहुत महान इंसान हूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, ये वो. आई एम लाइक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल. यही सच्चाई है. I really like the way you put it, the 100 months runway concept. I have. I mean, that is. बहुत कम खर्चा है मेरा लाइफ में, और पर्सनल रनवे बहुत ज़्यादा है मेरे पास. I think the freedom that provides, I think the freedom that comes with that kind of runway, I think it's a very. I have not felt that, but inshallah, you know, someday. But anyways. Someday. So you know, you were talking about you don't do anything, in the sense that. By anything I mean, you know, you don't like to travel, not you drink. नहीं, मतलब अच्छा लगता है. अभी आई वेंट टू जयपुर फ्यू डेज बैक, अच्छा लगा. बट इन मॉडरेशन यार, कितना ट्रैवल करोगे? साल में 2 बार कर लो, बहुत है.
दारू पीने में भी बुराई नहीं है, बियर भी अच्छा लगता है पीने में, कभी कभी पी भी लेता हूँ, हाँ, कभी पी लेता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट ऐसा नहीं लगता मुझे कि हर फ्राइडे तो मुझे चाहिए ही, हर वीकेंड तो मुझे चाहिए ही। यार दारू और महंगी अगर शराब होती, अगर ये 1 लाख का स्कॉच होता या ये इतना महंगा वाइन होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो नहीं आता है स्वाद, मुझे नहीं समझ में आता है, बेकार गरीब इंसान हूँ। So what do you try to optimize outside your work life? मुझे तो मजा आता है, कोर्स वोर्स बनाने में ठीक लगता है। No, that I feel It's not work life. that is still in the purview of like work. Like if you leave the course aside, if you leave Invact aside, सो is जाओ there, थोड़ी is there देर, nothing that you optimize for? सो लेते हैं थोड़ा ज्यादा। Sleep, is it? स्लीप इज गुड, इफ आई कैन गेट स्लीप इट्स गुड। कोई कुक कर दे तो अच्छा लगता है, खाना खाने में भी ठीक ही लगता है, So होम कुक्ड मील अच्छा लगता है। let's drill down a little bit. Like, can you tell us about your schedule? Maybe like what does your routine or schedule look like? Maybe start off like what. मॉर्निंग उठो What 6 AM, जिम जाओ, 1 hour जिम करो, 7:30 थोड़ा मेडिटेशन करो, 8 हो जाता है। 1 hour meditation. 30 minutes. 30 minutes 7:30, 6 to 6 I So wake gym up, from 6:30 to 7:30 I do gym, 7:30 7:45, फिर 7:45 to 8:15 meditation, फिर क्या करते हैं, हाँ फिर गेट रेडी, कम टू ऑफिस At around 9:30. एट अराउंड 9:30 ऑफिस पहुंच जाओ। उसके बाद तो भाई साहब उसके बाद तो दिन कैसे निकलता है मुझे पता ही नहीं चलता Is है। it mostly like consecutive meetings and? हाँ, मीटिंग्स, लोगों को परेशान करना, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे करना चाहिए, ये रिव्यू करा लो, वो रिव्यू करा लो। क्या खाली बैठे हैं, अगर किसी दिन किसी कोई सब अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई डांट नहीं खा रहा है तो कोई बुक पढ़ लिया, और बस शाम हो जाती है, 7-8 बज जाते हैं। Okay. 8:30 आई लीव फ्रॉम हियर, घर जाता हूँ, थोड़ी देर बातें करता हूँ। You have lunch around at 1 1 o'clock. वो एकदम फिक्स्ड है हमारा। Okay. 1 द होल टीम एक साथ बैठ के लंच करती है, और फिर शाम the में team lunches. Everybody sits together. sits together. Okay. तो वो मज़ेदार है। लंच कर लिया, शाम में नाश्ता कर लिया, डिनर भी मैं यहीं कर लेता हूँ 7 बजे, और फिर अराउंड 8:30 आई लीव। फिर घर गया, थोड़ी देर बातें की घर पे, फिर एक बुक लिया, उसको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। You सो read for गया। like what, half an hour? हाँ, हाफ एन आवर, समटाइम्स इवन 2 hours। 2 hours is it? Okay, कभी sometimes. वो चल जाता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द बुक। बुक इंटरेस्टिंग हो जाती है तो मेरी नींद उड़ जाती है, क्योंकि आई हैव अर्ली डिनर, समटाइम्स डिनर इज एट 7, तो अब तो नींद तो आ नहीं रही है आपको उतनी, तो आप कभी कभी पढ़ लेते हो बहुत, कभी नहीं भी पढ़ते, कभी थकान ज़्यादा है, दिन भर बहुत बोला है, तो फिर सो जाते हैं। मतलब सिंपल सी लाइफ है, मतलब मज़ा आता है इसमें तो। You sleep at what, 12 a.m.? ना 11, 10, 11, 10, 11. 12 तो बहुत लेट हो जाएगा। 12 Okay. Fair enough. आई एम ओल्ड यार। ठीक है. So, like I mentioned multiple times in this episode, it's been a year since we spoke. Exactly, I think. What do you think has been the highlight for the past year? Been the highlight for the past year. पता नहीं, एक चीज़ समझ में आई कि इंडिया में बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करना चाहते हैं। तो जब मैं पहले बातें करता था, एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर एल्स, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल who have done great in life but college पर पहुँच कर फेल हो गए, और they couldn't get good college. Now I realize कि उससे भी एक बहुत बड़ा टीजी है जो स्कूल में भी बहुत अच्छा नहीं किया है, और इसलिए नहीं अच्छा किया क्योंकि स्कूल एजुकेशन सिस्टम भी कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई है। क्योंकि मैं बोला ना, मैं तो स्कूल का विनर था बट IIT नहीं निकला, तो मुझे IIT से गुस्सा था। तो आई वॉज टेलिंग कि जो का IIT नहीं निकला वो भी बहुत स्मार्ट है, सब मेरे साथ आओ, मैं सबको रास्ता दिखाऊंगा। अब मुझे समझ में आता है कि जो लोग स्कूल में अच्छा नहीं किए वो भी कोई ऐसा तो था नहीं, मतलब स्कूल में भी विनर होना, जैसे हमने बातें की अभी तक। तो आई रियलाइज कि यार इंडिया में बच्चे बहुत मेहनत करना चाहते हैं। इफ़ यू गिव देम अ गुड चांस टू रीसेट देयर लाइफ, दे विल टेक इट एंड दे विल वर्क वेरी हार्ड। एंड व्हेन आई से अबाउट इंडिया में बच्चे, तो बहुत, मतलब हम अभी हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं और सब बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, अच्छे से काम करते हैं। Everyone. हाँ यार, Aren't बहुत there अच्छे any slackers? स्लैकर्स हैं, बट अगेन हम क्यों, मतलब हम स्लैकर्स पे क्यों ध्यान दें? एनफ स्टूडेंट्स आर देयर वो आर वर्किंग अमेजिंगली हार्ड, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो कभी अच्छा नहीं किया स्कूल में, कभी कॉलेज में अच्छा नहीं किया, कभी अपने मास्टर्स में अच्छा नहीं किया,
जो 2-2 साल से 3-3 साल से, वी विल डिसमिस पीपल राइट, जो 3 साल से जॉबलेस घर पे बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं करने को, तो इस अरे इनको तो कुछ नहीं आता है, 3 साल में तो तुम्हें कुछ नहीं, तो एक पॉडकास्ट ही शुरू कर देना चाहिए था. दैट्स हाउ वी थिंक. तो ब्लॉग्स क्यों नहीं लिख लिए? 3 साल में तुम एक बिजनेस शुरू कर लेते, एक एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज हाउ वी थिंक राइट. घर बैठे क्यों, क्या 3 साल का गैप, हाउ डू यू एक्सप्लेन? एंड यू लाइक कि कुछ नहीं, घर बैठे थे सोच रहे थे क्या करें, तब तक 3 साल निकल गया. तो वी डिसमिस दीज पीपल, दीज स्टूडेंट्स. आई फील कि नहीं करना चाहिए. तो द हाईलाइट इज कि आई रियलाइज कि दीज आर सम ऑफ द हार्ड वर्किंग फोक्स, जिनको हम बहुत अपने इग्नोरेंस में वी जस्ट डिसमिस देम कि यू नो दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, they don't want to excel in life. But ऐसा है नहीं. The reason they couldn't excel in life is not because they didn't want to, or the reason or they were not hardworking enough. The reason was there was no system to support them. That India as a country, as system, we have failed, and I think that's a very interesting thing which we can build upon at Invact. तो मुझे लगता है वो हाईलाइट है. अंडरस्टैंडिंग दैट इतना मैसिव पॉपुलस इतना मेहनत करने को तैयार है. आई फील कि कितनी बड़ी सुपर पावर है यार हमारे पास. तो अगर मैं इसमें से 10, 20, 50 हज़ार बच्चों को पढ़ा के और लगा दूँ प्राइवेट सेक्टर जॉब में, तो चलो सोचो कि इफ़ देयर आर 50,000 मोर पीपल कमिंग आउट एवरी ईयर गेटिंग इनटू से फाइनेंस और एनालिटिक्स डोमेन, तो जितना आपका ये जो कैप जेमिनाई है, ये आपका म्यू सिग्मा है, माइंड ट्री है, एक्सेंचर है, इन सब में ये लोग बच्चे घुस जाएंगे और कितना सारा काम यूएस से इंडिया ले आएंगे आज के टाइम पे. मतलब हमारा आज फॉरेक्स 60% आईटी कंपनी से यानी सर्विस सेक्टर से भरता है. हम उसको कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. सो इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ सुपर पावर. द ओनली थिंग स्टॉपिंग अस इज गुड education, good training, and elevating these students to the next level. And I think कि that is the highlight. Like understanding कि इतना बड़ा opportunity है, ऐसा potential है, बहुत बड़ी बात है. मुझे तो नहीं पता था. तो I think वो ना बुद्धा गए ऐसे बैठे, वो नीचे उसके क्या नाम है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बुद्धा, सिद्धार्थ, and then he became Buddha. सो एनलाइटमेंट इसी को कहते हैं ना कि आपको जो चीज़ें नहीं पता है, जीवन का जो सच आपको नहीं पता है, जब आपको पता चल जाता है तो आप बोलते हो मैं एनलाइटेंड हूँ. तो आई फील माई एनलाइटमेंट इन द लास्ट 1 year was knowing that we have huge potential in our country which we should tap into and make something big out of it. So I'm curious about the students in the sense that like why they might, and this is not only into Invact, maybe in general, as in general curious about like the software engineering industry itself. Like my opinion, I feel like there's a lot of money to be made in like software engineering. Obviously, in tech in general, I feel there's a lot of money to be everywhere made. Money is to be made everywhere. You get into tech, you get into financial analysis, you get into data, you even get into design. हर जगह पैसा है, पैसा कहाँ नहीं है आज के टाइम पे. Fair enough. Do you think there, I mean, here I'm kind of split in the sense that if somebody has the desire to make money, I mean, and if they know that this path can lead them to that, I mean, I am nobody to tell them that, you know, you should not do it, even though it may not work in your favor. When I say work in your favor, I mean, going back to my earlier example of, you know, some people, no matter how many hacker rank exercises they might do, they are not able to solve like complex coding problems maybe, and it's not like they will do 100 problems and suddenly something will click, and you know, and even if it does click, the pace at which they'll be able to, let's say, approach problems or solve problems, it may not be as efficient as opposed to, let's say, they figured out another stream which might really work in their skills and their strengths. So in a nutshell, what I'm trying to say is, even though they might have other strengths, because there is a lot of money, let's say, in like software engineering or coding per se, they might see some influencer, you know, talking about how they're in Bali coding up some freelance project and making millions, and that might entice them to leave everything aside and, you know, start like a boot camp or, you know, get into tech per se. Do you see, is that a problem, like in the sense that are you seeing students do that, or is it all in my head? I think बहुत ही एलीट थॉट है ये सब कि पैशन जैसी कोई चीज़ होती है और स्ट्रेंथ भी कुछ होता है. जब आप 2 साल घर में बिना जॉब के बैठे रहते हो
तो सारा पैशन स्ट्रेंथ सब भूल जाते हो आप, और आपको जॉब चाहिए होता है उस समय, तो कोई भी जॉब चलता है। और वाई मतलब टेक के अलावा भी एज आई सेड आप डेटा में जा सकते हो, आप फाइनेंस में जा सकते हो, आप डिज़ाइन में जा सकते हो, तो इनफ फील्ड्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट से परस्यू भी कर सकते हो। आई एम नॉट डिसमिसिंग इंटरेस्ट। रही बात स्ट्रेंथ की, तो यार जब मैं फर्स्ट दिन पुलअप करने गया था तो मेरे साथ तो पुलअप तो हुआ ही नहीं, किसी से भी नहीं होता। डे 1 को पुलअप्स नहीं होते, You're talking the physical pull-up, is it? फिजिकल Okay. पुलअप, बट विथ टाइम इट हैपेंस। सो स्ट्रेंथ तो बिल्ड करना होता है ना, डेली वेट ट्रेनिंग करो, डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, डेली स्पेंड करो इनफ टाइम, अपने मसल को चैलेंज करो, तो स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाती है। प्रोग्रामिंग हो, फाइनेंस हो, कोई भी फील्ड हो, स्ट्रेंथ तो बिल्ड हो जाती है। स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हम क्यों सोचते हैं कि इन्नेट है, मसल स्ट्रेंथ नहीं है इन्नेट, तो मेंटल स्ट्रेंथ भी नहीं है इन्नेट, वो भी बिल्ड हो जाती है। पर उसके तरीके नहीं बनाए हमने जिम नहीं बनाया, हमने मेंटल जिम नहीं बनाया बच्चों के लिए। हमने नहीं बोला किसी को कि आज 5 kg से शुरू करो, ये 5 reps मारो, ये 10 reps मारो, उसके बाद ये 3 sets मारो, फिर अगले दिन आज चेस्ट करो, आज ये करो, आज शोल्डर करो, आज बैक करो। नहीं बनाया ना हमने तो बोल दिया ये हैकर रैंक है, ये पुलअप बार है, इस पर पुलअप करो। तो कैसे करेगा बच्चा? तो हमने क्या बोला डीएसए के अगेंस्ट में, इसलिए बोलता हूँ इतना कि डीएसए इज दैट पुलअप बार कि भाई फर्स्ट डे जिम चढ़ जाओ ऊपर, तो होएगा ही नहीं। अगर आप फर्स्ट डे ही इतना टफ प्रॉब्लम दे दोगे तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, कैसे होगा? आपको डे 1 को आपको आप बोलोगे कि वो 1 हैंड पुशअप मार लो, ठीक है, डे 1 को आप बोलोगे कि 25 kg के स्क्वाट्स मारो, तो नहीं करेगा ना बच्चा, तो नहीं कर सकता। तो डीएसए के सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं। बट तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि यार ग्रेटर देन, लेस देन, वेरिएबल नेमिंग, वेरिएबल पे 50-100 प्रॉब्लम्स कराओ, 1 2 5 kg को 15 बार क्यों नहीं कराते, 2.5 kg को 15 बार क्यों नहीं कराते? सीधे पुलअप मारने क्यों बोलते हैं हम बच्चों को? और फिर बच्चे को बोले तू फेल कर गया, देख उसने तो कर लिया। अरे उसने कर लिया, उससे ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो गई। वो तो कोई भी कर सकता है, कोई ऐसे तो होंगे 10 लोग जो जिम जाएंगे, उसमें से 2 लोग तो पुलअप मार ही लेंगे। बट आपका काम तो स्ट्रेंथ बिल्ड कराना है ना, तो आप स्ट्रेंथ को इतना इन्नेट क्यों मानते हैं? जब जिम में नहीं मानते हैं तो पढ़ाई में क्यों मानते हैं? ये भी तो ट्रेनिंग ही है ना, जैसे मसल ट्रेनिंग है वैसे ये भी ट्रेनिंग है। ऐसे क्यों नहीं सोचते हम कि हम फेल कर रहे हैं सही ट्रेनिंग बिल्ड करने में, बच्चा नहीं फेल कर रहा है पुलअप मारने में। किसी भी बच्चे को, किसी को भी, मेरे 32 ईयर्स में फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड जिम, मेरा बॉडी का हालत खराब था बिल्कुल, और अभी कर लेता हूँ ना पुलअप आराम से। अभी तो बहुत सारा वेट के साथ बेंच प्रेस हो जाता है, स्क्वाट्स हो जाता है, सब हो जाता है। अब क्यों ये प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मसल बिल्ड हो जाता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ लोगों को, वो खुद भी कर रहा हूँ कि भाई मसल बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ बिल्ड होता है। तो स्ट्रेंथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इननेट स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता, बिल्ड होता है टाइम के साथ, और हम बिल्ड करा सकते हैं। और इनफैक्ट में दैट्स व्हाट वी आर मेकिंग, कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल एनालिसिस की स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग की स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो कोई बात नहीं, आओ पहले दिन आता बच्चा, बोलो जाओ चक्कर लगा के आओ, 2 चक्कर मार के हाफ गए सर, कभी एक्सेल नहीं पढ़े थे, हाँ पहला बार एक्सेल, अरे हाफ गए, चलो जाओ कोई बात नहीं, आज बैठ जाओ, आज के लिए बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अगले दिन आता है, जाओ फिर चक्कर लगा के आओ, फिर चक्कर लगा के आता है, तो 2 मार लिए, आज एक और मार लो, तो 3 चक्कर मार, सर बेटर लग रहा है एक और दे दीजिए। 1 महीने में उसको आराम से मॉडलिंग सिखाते हैं, फिर उसको बोलेंगे आप थोड़ा एक्सेल भी कर लो, अब थोड़ा एनालिसिस भी कर लो, धीरे धीरे करो ना। कुछ दिन में उसको वो आता है, बिना पूछे ही चक्कर मार के 2 चक्कर मार के आता है, बोलता है अच्छा सर अब क्या करो, थोड़ा दंड बैठक कर लो, अब तुमको ड्रिल कराएंगे। मेरे मामा वॉलीबॉल प्लेयर थे, हर दिन वॉलीबॉल का ड्रिल करते थे, वो दीवार के अगेंस्ट जाके ना, आपको ऐसे वॉलीबॉल का ड्रिल करना होता है ना, हाथ ऐसे अभी भी हो जाता है, तो ड्रिल करते थे। तो ड्रिल करो थोड़ा, जो बैडमिंटन खेलता है वो हर दिन बैडमिंटन का ड्रिल करता है, कोर्ट में जाके सारे कॉर्नर्स कवर करना, सारे शॉट्स मारना कि सही से लग रहे हैं कि नहीं, एयर शॉट्स मारना, करते हैं ना हम लोग, ड्रिल तो करते हैं। तो क्यों नहीं करते ड्रिल पढ़ाई के टाइम पे? क्यों उससे भागते हैं? किसी को बोलो फर्स्ट दिन जाओ और एकदम बैक ऑफ द कोर्ट से स्मैश मारो, और नहीं मार पाए, तो तुम्हारे में स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो फिर तो गलत है। वही तो मेजर प्रॉब्लम है ना एजुकेशन सिस्टम की, कि आप बोलते हो कि ये तो इन्नेट होना चाहिए, और मैं बोलता हूँ कि इन्नेट तो नहीं होना चाहिए। हर जगह दिखता है कि नहीं है। रोटी बनाना देख लो, एक एग्जाम्पल, पहले दिन में तुम्हें बोलो रोटी बनाना है, तुमने कभी रोटी बनाई है? No. कुछ भी बनाया है? मैगी में भी ना, मैगी तो स्किल है ही नहीं। Okay. रोटी बनाना इज सच ए स्किल एंड एवरीबडी कैन डू इट। पूरा इंडिया करता है,
जबकि अगर आप रोटी बना, इतना मुश्किल है रोटी बनाना, उसको गोल करना, उसको फुलाना, उसमें अगर पानी ज़्यादा पड़ गया तो आटा खराब, वो सूखा उतना ही रखना है, गीला उतना ही रखना है, तब वो जाकर होता है। और क्या फट 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 लोग बनाते हैं, एकदम ऐसे घूमता है रोटी, जब आप उसको बेल रहे होते हैं ना, रोटी घूमने लगती है नीचे। क्या स्किल है यार। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे रुमाली रोटी ऐसे हवा में उछाल देते हैं और फिर पकड़ लेते हैं, वो क्या स्किल है, वो सीख सकते हैं हम। इतना ज्यादा टफ है तो प्रोग्रामिंग क्यों नहीं सीख सकते? प्रोग्रामिंग तो उससे बहुत ही छोटी स्किल है, क्योंकि किसी को प्रोग्रामिंग में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, डेटा एनालिसिस में किसी को ट्रेन करने ही नहीं आता है। कोई बोलता ही नहीं है कि जा ना चक्कर मार के आना। 1 महीने की कोर्स किसको चाहिए? 1 महीने का पुलअप कोर्स तो उसको चाहिए ना, कैलिस्थेनिक्स तो उसको चाहिए जिसने 10 साल जिम किया है पहले। जिसने नहीं किया उसको तो पहले स्ट्रेंथ बिल्डिंग करो, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करो, रोज करो, धीरे धीरे करो। 3-4 महीने में 1 पुलअप मार लेगा, फिर धीरे धीरे बाकी चीजें भी कर लेगा। फिर वो इनविजिबल स्टेयर भी करने लगेगा, वो सब भी करते हैं लोग। तो वो तो हम करते हैं ना, हमने देखा है हर जगह होता है, बस एजुकेशन में नहीं होता वो मैजिक। एजुकेशन के बाहर हर जगह होता है वो मैजिक, बस एजुकेशन में ही नहीं होता है। So I think like discussed earlier in the episode as well, about students looking up to you per se. In some ways I can say that you're a mentor to many students. Do you have a mentor? अभी तक तो नहीं है कोई। I have people who I can go to and talk to and ask sometimes, but लाइफ में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, how to think about these things, I don't have someone like that. Even I don't have a mentor at this point, but I've heard multiple times by multiple people, even in general as well, that people, it's good to have a mentor. Do you have any thoughts on that? It is good यार, मैं तो बहुत टाइम सेव कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गलतियाँ करने से उनको बता देता हूँ। I wish I had someone like that. नहीं है अभी कोई, तो it's okay. Is it fair to say that when you read stuff, is that like a source of mentorship? Is that fair, or? It is. Sometimes it is the source of mentorship. Good books are good mentors. What are you reading right now? Right now I'm reading Elon Musk's new biography. The Walter Isaacson one. The best book you've read? Best book? Baap re. Mahabharat. Really? Love that book. I have this Mahabharat's rendition, Narendra Kohli's rendition of Mahabharat. Okay. So he has written it like Mahasamar in 8 parts. Beautiful book. So I think definitely, I don't know if it's the best because that I don't remember all the books I have read, but I keep going back to that book again and again. It's a good book. Anything after the 19th century? After the 19th century, deep work is something which has helped me a lot. I think more than a good book, what you need is your takeaways from that book. You don't have to name the best book, you have to name the book which influenced you the most. I think deep work is something which influenced me a lot, because it's been now 4 years I don't have any of my notifications switched on. So, and if I want to, and I value deep work a lot, so been there for almost 4 or 5 years in life. I think deep work, and there's another book called, I think, Atomic Habits, which keeps coming up. Like, I don't know, sometimes I go to Reddit to look for like new books to read maybe. Atomic Habits, deep work is one, but also Atomic Habits is another one which keeps like, you should definitely read that. Achha. I don't know. I haven't read Atomic Habits, so can't comment. Yeah, I've read it. I didn't like it so much, so I don't know. Anyways, can we talk about AI for a bit, if you don't mind? I have very few like thoughts on AI. My thoughts on AI are very simple. Yeah. Please go ahead. Let's see how it goes. So, with AI, there is some promise, right? But there's a lot of assumption, and the way AI progresses, like yesterday I was talking to someone that I've been following the AI space for almost 10-12 years now, and there was this wave of AI around 2014-2015 when I was also working in AI, and that was around RNN and CNN and deep learning models. And then it took 5-6 years for people to come up with this
decoder encoder model which these GPT and other models use, right? So maybe once in 5 years, once in 10 years, you see a breakthrough, and then everybody starts assuming that the next breakthrough will happen in the next 1 year, which never happens, because then people start working on that breakthrough and start testing its limitations. So someone has to then parallelly work and get a new breakthrough. So AI is not like we think about AI like software engineering or like iPhone models. Like every year it will become better. It will, but only so much. So I don't see AGI happening anytime soon, or I don't see AI replacing all the jobs anytime soon, just because we crack the LLMs or just because we crack the Gen AI. It doesn't mean that it will solve all our problems in the next 5 years or 10 years. It needs another few more breakthroughs, and the cycles are long. So maybe in 20 years something will happen. I don't know. 20 years is a long time. 5 years is a long time to predict. Like, what should happen? So I feel like you're not really, like, the way you're kind of talking about it, I feel like you're not convinced at all with this AI hype maybe. So like, I'm convinced. I think ChatGPT can do a lot of good things, and Okay. GPT and all these LLMs can do a lot of good things, and the whole Gen AI piece, the whole model of this, the attention mechanism, if you get into it, it has a lot of promise, but it has its own limitations. So I don't see this radically changing the entire world as we see it. And I think when we talk about there would be no jobs, or there would be universal basic income and things like that, I think that is something which is far, far away. like what should happen for you to be like, fuck man, this is amazing? I don't know, yaar. I don't know. I mean, something wherein AI comes in, and some sort of AGI where it can interpret things much better than just understanding text commands and voice commands, and it gets more context. So I think that is where it will happen. Right now we are really good. Now LLMs have solved the language problems which RNN was unable to solve, right? We are better in understanding and generating language, but that's what it is. It is not more than that. So we shouldn't give more credit. Just because someone is talking like a human, it does not make it a human, because a human does more than interfacing with another human, right? So the interface part has improved significantly, I feel, and some parts of it because of that communication pieces and ChatGPT writing poems and all. But poem was always a useless thing, and literature or basic programs, writing a what do you call Chrome plugin or a chat app or things like that. Tutorials have been doing it for so long. Code generators have been doing it for so long. So until it like literally replaces a human, I don't think AI has a lot of potential. Let's talk jobs a little bit, in the sense that I think the CEO of My Dukaan, I forget his name, Sumit Shah, if I'm not wrong. So I think Sumit, again, I'm very I tend to follow like what other people have to say, and maybe I place more of a value than most people should. Anyways, so I think I think their organization really benefited from some of the language model advances, and I think they had replaced a few jobs. And I think he was talking about it. He got a lot of flack for it. But irrespective of that, core point is like, are you seeing any like some areas of your organization where where language models or advances in deep learning might replace some or one or more employees, or do you see that happening in the next 6 months, 1 year at all? No, I have Not like 10 people only, so I don't see a ChatGPT or anything taking anyone's job anytime soon, because if that is the kind of job someone is doing here, they are not needed. So we don't have a lot of people, so everybody is handling so many things that I don't think a ChatGPT can or something like that can take care of their job. I don't know your precise designation, so I'm just going to say you were a programmer in Microsoft earlier. That's good. Fair enough. Now you're obviously you're in the management position. You're the CEO.
Management, huh? I don't know. Okay. Isn't that management? I don't know. ठीक है, some parts of it are like it is management. Isn't all of it management? You don't think No, so? I think all of it is more development than anything. It's still engineering through and through. It's just Okay. that you're not engineering things through code. You're engineering things through different things. You're basically engineering courses. You're engineering experiences. You're engineering how doubt clearing should happen, how mentorship should happen. But still, all development the way I see it. And you iterate, you deploy, and then you see, okay, there are bugs, and then you say, okay, let's do it again. Let's try this different way, and then some things work out, some things don't. So you need to have that systems thinking again. What would work, what would not work. So I think any founder who's thinking themselves of as management has just lost the purpose of being a founder. Founders are first-hand builders and nothing else. Like management, yes, I do have to manage sometimes the food menu of what people will eat, or when we'll have the next party, or whether people should get 15 days leave for Diwali or not. There are some pieces of it, but those are like very, very small pieces. Like part of the reason why I asked that is because this may not exactly translate into your context, but I've had a few software engineering folks, friends of mine who transitioned into, let's say, program managers or product managers, more of a management role per se, didn't really like it or couldn't, like, it was not as appealing as they thought it was, and software engineering itself was much better, and just writing code was much better than, let's say, working on other stuff. Are you happy with your transition that you've made, or do you feel some longing towards your earlier responsibilities? This is exciting. This is still systems thinking. This is still development. This is how I still approach things. That we deployed something. It was good that time. Now V1 is done. Now let's work on V2 and then V3 and V4. So there isn't a lot of change. Instead of writing code, maybe and again, when I was at Microsoft, I was a senior software engineer, tech lead. So I was not writing a lot of code even then. By the time I left, it was more around what other people have written, how we are thinking, engineering design and stuff like that. So it's very similar to what I was doing there. So barring the leaves and the food menu. So I'm actually done with all my technical questions. I just have I thought almost. Okay, I no just have two more, which are on a different tangent. So last time I think when we spoke, so I wasn't dating, and I wasn't in a relationship as well. But you had a lot of advice. We discussed your marriage last time as well, and your idea of relationship. This time I am dating, and congratulations. And I am looking for so first of all, what do you think makes a good relationship? What is you're married as well, so from in retrospect, what do you think makes a long lasting nice relationship? And any dating advice you would have in general? Yeah, listen to what she's saying. I think that's the only advice I would say. बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाती हैं लड़कियाँ, कि मतलब उसने कहीं बोला मुझे ये चीज़ पसंद है, तुम देखो कहीं मिल जाता है तो थोड़ा सा एफर्ट मारो, बहुत है. मतलब इतना बाहर लड़कों ने इतना लो करके रखा है जिंदगी में. So, is it? हाँ, मुझे तो लगता है कि लड़के एकदम सही से डेट नहीं कर रहे हैं आजकल. मतलब हमारे टाइम पे हम लोग भाई कितना मेहनत करते थे एक लड़के के लिए, और आजकल तो टिंडर विंडर पे तो कुछ है ही नहीं गया है, और बार बहुत लो है, तो तुम थोड़ा भी एफर्ट मार दोगे तो अच्छा रहेगा. ओके. और मतलब आई एम नॉट सेइंग कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, आई एम सेइंग पुट सम एफर्ट. छोटी चीज़ें, मूवी देखनी है तो थोड़ा सेलेक्ट कर लो कि यार ये 4 ऑप्शंस मैंने पहले से सोच के रखा था, बिकॉज यू लाइक रोम कॉम्स, तो मैंने रोम कॉम ये माई लिस्ट में ऐड कर दिया था. खाने जाना है, अगर फूडी है तो देखो कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ के रेटिंग्स अच्छे हैं. सरप्राइज हर समटाइम्स. So small. बहुत ही सिंपल है ये सब तो. Small, focus on the small things, basically. बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने में ही रिलेशनशिप में मज़ा है. बड़ी बड़ी चीज़ें तो हो ही जाती हैं. ओके. एनिवर्सरी वगैरह तो आपको याद रहना ही चाहिए, वो तो डिफ़ॉल्ट है, वो तो जेडी के साथ आता है. Okay. छोटी चीज़ें याद रख लो, बचपन की दोस्त का नाम, ये सब सिंपल चीज़ें हैं. सुनो, मतलब जब बोला जा रहा है तो सुनो ध्यान से. एंड आई थिंक बीइंग अ पॉडकास्टर दिस शुड कम वेरी इजी टू यू. सुन लो, नोट्स रख लो, रिविजन कर लो. एग्ज़ाम है, थोड़ी मेहनत कर लो. ये भी
अच्छा हो जाता है. ठीक है, on that note, Tanay, thank you so much for taking the time. Thank you, Ryan. This was great.